تاریخ میں ایک ایسے عظیم بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس کی حکومت صرف انسانوں تک محدود نہیں تھی بلکہ جنات، پرندے اور جانور بھی اس کے تابع تھے۔ ایک ایسی فوج جو سمندر کی گہرائیوں سے موتی نکال کر لاتی تھی۔ جی ہاں دوستو، آج ہم تاریخ انسانی کے اس عظیم ترین بادشاہ اور اللہ کے لاڈلے نبی کی بات کر رہے ہیں جن کی سلطنت کی سرحدیں زمین سے لے کر آسمان کی ہواؤں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے سفر پر لے جائیں گے جو آپ کی عقل کو تنگ کر دے گا۔ چینٹیوں کی وادی کا وہ حیرت انگیز واقعہ جس میں ایک چینٹی نے اس عظیم بادشاہ سے مکالمہ کیا۔ وہ پر اسرار انگوٹھی جس کے چھن جانے پر ایک لمحے میں یہ بادشاہ فقیر بن گیا۔ ملکہ بلقیس کا وہ تخت جو پلک چپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور سے منگوا لیا گیا، اور ایک ایسی دعوت جس میں پوری دنیا کی مخلوق کو بلایا گیا۔ لیکن پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے اس عظیم بادشاہ کو بھی سجدے میں گرنے پر مجبور کر دیا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایسی دعا قبول کی تھی جو ان کے بعد کسی اور کے لیے نہیں کی گئی۔ انہوں نے دعا کی تھی، اے میرے رب، مجھے معاف فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے انہیں کیسی سلطنت دی۔ ان کے لیے 36 کوس پر پھیلا ہوا ایک ایسا محل تعمیر کیا گیا جس کی دیواریں، چھتیں اور فرش سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے تھے، اور یہ محل انسانوں نے نہیں بلکہ جنات نے تعمیر کیا تھا۔ اسی محل کے بیچوں بیچ وہ عظیم الشان تخت رکھا تھا جسے تاریخ تخت سلیمانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ تخت کوئی عام تخت نہیں تھا، یہ خالص ہاتھی دانت کا بنا تھا اور ہیروں، موتیوں اور زمرد سے اس طرح جگمگاتا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھی آ جاتی۔ تخت کے چاروں کونوں پر سونے کے درخت بنائے گئے تھے اور ان پر سونے کے بنے ہوئے طوطے اور مور بیٹھے رہتے جن کے اندر کستوری اور عنبر بھرا ہوتا تھا، اور پورے دربار میں ہر وقت جنت جیسی خوشبو مہکتی رہتی۔ جب حضرت سلیمان اس تخت پر بیٹھتے تو ایک طرف انسانوں کے وزیر کھڑے ہوتے، دوسری طرف جنات ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے، اور اوپر اڑتے ہوئے پرندے اپنے پروں کو جوڑ کر ایک بہت بڑا سائبان، چھتری بنا لیتے تاکہ بادشاہ پر دھوپ نہ پڑے۔ پھر آپ ہوا کو حکم دیتے اور ہوا اس پورے کے پورے دربار کو فضا میں اٹھا لیتی اور چند لمحوں میں ہزاروں میل دور لے جا کر اتارتی۔ لیکن ذرا رکیے، آپ کے خیال میں اتنی بڑی سلطنت اور خزانے کا مالک کھاتا کیا ہوگا؟ کیا ان کے دسترخوان پر سونے کے برتنوں میں کھانے چنے جاتے تھے؟ نہیں دوستو، یہی وہ بات ہے جو انسان کی آنکھوں میں آنسو لے آتی ہے۔ اتنی طاقت اور دولت کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام سرکاری خزانے سے ایک پیسہ تک نہیں لیتے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے درختوں کے پتوں کی ٹوکریاں بناتے، بھیس بدل کر انہیں بازار میں عام انسانوں کی طرح بیچتے، اور جو چند سکے ملتے ان سے جو کا آٹا خریدتے اور خود پکا کر کھاتے۔ اللہ اکبر! کیا آپ آج کے دور میں کسی معمولی افسر سے بھی ایسی عاجزی کی توقع کر سکتے ہیں؟ دنیا پر حکومت کرتے ہوئے ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ شاندار اڑتا ہوا تخت فضا میں محو سفر تھا۔ نیچے پہاڑ، جنگل اور ندیاں تیزی سے پیچھے چھوٹ رہے تھے، پرندوں نے سایہ کیا ہوا تھا اور ہوائیں تخت کو اٹھائے اڑ رہی تھیں۔ اچانک راستے میں ایک ایسی وادی آئی جسے تاریخ وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی کہتی ہے۔ وہاں اربوں کی تعداد میں چیونٹیاں بستی تھیں۔ جب بادشاہ کا لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو نیچے زمین پر موجود چیونٹیوں کی سردار نے آسمان پر اس عظیم الشان لشکر کو آتے دیکھا۔ اس سردار چیونٹی نے فوراً اپنی قوم کی طرف رخ کیا اور ایک اعلان کیا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ کوئی انسان اسے نہیں سن سکتا تھا، لیکن چونکہ سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں، وہ آواز سیدھی ان کے کانوں میں پڑی۔ چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے قدموں تلے کچل دے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ یہ سن کر وقت کا وہ عظیم بادشاہ مسکرا پڑا۔ انہوں نے فوراً ہوا کو حکم دیا کہ تخت کو روکو اور اسے زمین پر اتارو۔ پورا لشکر وہیں رک گیا۔ سلیمان علیہ السلام تخت سے نیچے اترے، اس سردار چیونٹی کے پاس گئے
उसे निहायत प्यार से अपनी हथेली पर रखा और पूछा, ऐ शाह मूर, तुमने अपनी कौम से ऐसा क्यों कहा? क्या तुमने मुझ में कोई जुल्म देखा है? चींटी ने निहायत दलेरी और अक्लमंदी से जवाब दिया, ऐ अल्लाह के नबी, हमने कोई जुल्म नहीं देखा। मैं जानती हूं आप आदिल हैं, लेकिन मैंने एहतियातन ऐसा कहा कि कहीं आपके लश्कर के घोड़ों की टापों तले हम कुचले ना जाएं। इस मुकालमे के दौरान चींटी ने फख्र से बताया कि उसके जेर असर 40,000 चींटियों के लश्कर हैं। इस पर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारी बादशाही बेहतर है या मेरी? दोस्तों, इस हकीर सी चींटी का जवाब सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। उसने कहा, ऐ सुलेमान, मेरी बादशाही बेहतर है। आपने पूछा, वो कैसे? चींटी बोली, इसलिए कि आपके तख्त को हवा उठाती है, आपको कितना तकल्लुफ उठाना पड़ता है, जबकि मैं जमीन पर अपनी मर्जी से आजादी से चलती हूं। और दूसरी बात यह कि इस वक्त मुझ जैसी हकीर मखलूक वक्त के सबसे बड़े बादशाह की हथेली पर बैठी है। इससे बड़ी बादशाही मेरी और क्या होगी? यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया जिसने उन्हें यह आजिज़ी अता की। दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक बादशाह का जलाल क्या होता है, यह हमें मलका बिल्कीस के वाक़े में नजर आता है। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में परिंदों की हाजिरी ली। आपने देखा कि हुदहुद नामी परिंदा दरबार से गायब है। आपको जलाल आ गया और फरमाया, मुझे हुदहुद नजर क्यों नहीं आ रहा? अगर उसने अपनी गैर हाजिरी की कोई ठोस वजह ना बताई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा या ज़िबह कर दूंगा। कुछ ही देर बाद हुदहुद उड़ता हुआ आया और हाँकते हुए बोला, ए नबी, गुस्सा ना कीजिए, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं जो आपको भी मालूम नहीं। मैं सबा के इलाके से आ रहा हूं। वहां मैंने एक औरत को देखा है जो एक बहुत बड़ी सल्तनत की मालिका है। उसका तख्त इंतहाई अजीमुशान है, लेकिन अफसोस वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। यह सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत लिखा जिसकी शुरुआत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की गई थी और हुदहुद को हुक्म दिया कि यह खत मलका के महल में गिरा कर आओ। जब खत मलका को मिला तो वो घबरा गई। उसने अपने सरदारों को बुलाया और मशवरा किया कि सुलेमान कोई आम बादशाह नहीं, हमें उनसे जंग के बजाय तोहफे भेजने चाहिए। मलका बिल्कीस ने सोने की ईंटें, हीरे और जवाहरात सुलेमान अलैहिस्सलाम को भिजवाए, लेकिन जब वो तोहफे दरबार में पहुंचे तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें ठुकरा दिया और फरमाया, क्या तुम मालो दौलत से मुझे लालच देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे उन खजानों से करोड़ों गुना बेहतर है। अपने कासिदों से कहो कि वापस चले जाएं, हम उन पर ऐसा लश्कर लेकर आएंगे जिसका वो सामना नहीं कर सकेंगे। ये सुनकर मलका बिल्कीस खुद हजरत सुलेमान की तरफ रवाना हुई। जब आपको खबर मिली कि मलका आ रही है तो आपने अपने दरबार के जन्नात और इंसानों की तरफ देखा और एक ऐसा सवाल किया जिसने दरबार में सनसनी फैला दी। तुम में से कौन है जो मलका बिल्कीस के यहां पहुंचने से पहले उसका वो अजीमुशान तख्त हजारों मील दूर से यहां मेरे पास ला सकता है? एक देवोकल और ताकतवर जिन ने खड़े होकर कहा, आपके दरबार बर्खास्त करने से पहले मैं वो तख्त ला सकता हूं। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे भी जल्दी चाहते थे। फिर क्या हुआ? एक शख्स जिसका नाम आसिफ बिन बरखिया था और जिसके पास आसमानी किताब का इल्म था, उसने दावा किया, ए बादशाह, आप अपनी पलक झपकाएं, आपकी आंख झपकने से पहले वो तख्त यहां मौजूद होगा। दोस्तों, जैसे ही हजरत सुलेमान ने पलक झपकी तो क्या देखते हैं कि यमन में मौजूद वो कई टन वजनी हीरों से जुड़ा तख्त हजारों मील दूर यरूशलेम में उनके दरबार में मौजूद था। यह देखकर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तकब्बुर नहीं किया, बल्कि फौरन नजरें झुका ली और फरमाया, यह मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। दोस्तों, अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता भी है। अल्लाह के इस लाडले नबी पर भी एक वक्त ऐसा आया जब उनसे ये पूरी सल्तनत, ये हवाओं का कंट्रोल, ये जिन्नात की हुक्मरानी सब कुछ छिन गया।
कहा जाता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक खास अंगूठी थी जिस पर इसमें आजम कंदा था। जब वो अंगूठी पहनते थे तो इंसान, जिन्नात, जानवर और हवाएं सब उनके ताबे हो जाते थे। एक दिन अल्लाह की हिकमत से एक शरीर और ताकतवर जिन ने धोखे से वो अंगूठी हासिल कर ली। जैसे ही वो अंगूठी उस जिन की उंगली में गई, तख्तो ताज, लश्कर और दरबार सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ से निकल गए। वो जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धार कर तख्त पर बैठ गया और वक्त का वो अजीम बादशाह जिसके इशारों पर हवाएं चलती थीं, अचानक एक आम इंसान बन गया। वो दरबार से निकले, कोई उन्हें पहचानता नहीं था। भूख और प्यास से निढाल, जंगलों और सहराओं की खाक छानते हुए वो एक साहिली बस्ती में पहुंचे। सोचें दोस्तों, वो बादशाह जो कल तक जिन्नात का आका था, आज बस्ती के लोगों से खाना मांग रहा था और लोग उन्हें धक्के दे रहे थे। वहां उन्होंने एक मछीरे के पास मजदूरी शुरू कर दी और बदले में वो उन्हें रोजाना एक मछली दे देता जिससे वो अपना पेट पालते। कई दिन इसी कड़ी आजमाइश में गुजर गए। दूसरी तरफ उस शरीर जिनसे सल्तनत का निजाम ना संभाला गया, वो घबरा गया और उसने वो अंगूठी एक समंदर में फेंक दी जिसे फौरन एक बड़ी मछली ने निगल लिया। अल्लाह की कुदरत देखिए, कुदरत के पहिए घूमे। एक दिन वही मछली जिसके पेट में अंगूठी थी एक शिकारी के जाल में फंसी और बुकती बुकती उसी मछीरे तक पहुंच गई जहां हजरत सुलेमान मजदूरी कर रहे थे। उस दिन मछीरे ने उजरत के तौर पर वही मछली सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी। शाम के वक्त भूख से निढाल सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब पकाने के लिए उस मछली का पेट चाक किया तो अंदर एक चमकती हुई चीज पर नजर पड़ी। दोस्तों, वो उनकी वही जानी पहचानी खोई हुई अंगूठी थी। अंगूठी मिलते ही आप सजदे में गिर पड़े। उसे जैसे ही उंगली में पहना, हवाएं दोबारा चल पड़ी, जिन्नात दोबारा ताबे हो गए और तख्तो ताज वापस कदमों में आ गए। आप समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से कड़ा इम्तिहान था ताकि बादशाहत का गुरूर दिल में पैदा ना हो सके। इस आजमाइश के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और भी बढ़ गई। एक दिन उनके दिल में एक अनोखी ख्वाहिश पैदा हुई। उन्होंने अल्लाह के हुजूर अर्ज किया, या रब, तूने मुझे इतनी दौलत और सल्तनत दी है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दिन के लिए तेरी तमाम मखलूक को अपने दस्तरखान पर दावत खिलाऊं। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए सुलेमान, तू ऐसा नहीं कर सकता। मखलूक को रोजी देना सिर्फ और सिर्फ मेरा काम है। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत इसरार किया। बिल आखिर अल्लाह ने उन्हें एक दिन की इजाजत दे दी। इजाजत मिलते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूरी सल्तनत में ऐलान कर दिया। जिन्नात को हुक्म मिला कि चूल्हे जलाओ। पहाड़ों के बराबर देगें चढ़ाई गईं। हवाएं लकड़ियां उड़ाकर लाने लगीं। इंसानों, जिन्नात और जानवरों ने मिलकर महीनों तक खाना पकाया। जब खाना तैयार हो गया तो हवाओं ने जमीन पर मीलों लंबा दस्तरखान बिछा दिया। इस दस्तरखान पर इतना खाना था कि आंख जहां तक देखती खाने के पहाड़ नजर आते। हजरत सुलेमान तख्त पर तशरीफ फरमा थे, बहुत खुश थे कि आज दुनिया की हर मखलूक मेरा तैयार किया हुआ खाना खाएगी। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, खाना तैयार है, मेहमानों को भेज। अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि जाओ, आज मेरे नबी की दावत खाओ। अचानक समंदर में एक जबरदस्त तूफान आया, पानी फटा और एक इतनी बड़ी मछली बाहर निकली जिसकी जिसामत देखकर लोगों के दिल दहल गए। इस मछली ने अपना खौफनाक जबड़ा खोला और हजरत सुलेमान से मुखातिब होकर बोली, ए नबी, मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना खिलाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर इजाजत दे दी और कहा, शुरू करो। दोस्तों, अब जो मंजर तारीख ने महफूज किया है वो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। वो मछली आगे बढ़ी, उसने मुंह खोला और मीलों लंबे दस्तरखान पर रखा हुआ महीनों का पकाया गया सारा का सारा खाना, गोश्त के पहाड़, शोरबे के समंदर, सब कुछ, जी हां, सब कुछ एक ही नवाले में निकल गई। मीलों लंबा दस्तरखान एक लम्हे में साफ हो गया और फिर मछली ने डकार लिया और बोली, या हजरत, कुछ और मंगवाइए, मेरा पेट तो अभी भरा ही नहीं, मुझे तो अभी और भूख लगी है। ये मंजर देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरत और हैबत से दंग रह गए। वो अपनी जगह से उठे
और कांपती हुई आवाज में बोले, ये तूने क्या किया? तू सारा खाना खा गई और कह रही है पेट नहीं भरा। मछली ने जवाब दिया, ए अल्लाह की नबी, मेरा रब रोजाना समंदर की तहों में मुझे ऐसे 3 नवाले खिलाता है, तब मेरा पेट भरता है। आज आपकी दावत थी, मुझे लगा पेट भरकर खाऊंगी, लेकिन आपके पास तो मेरा एक वक्त का खाना भी पूरा नहीं था। ये सुनना था कि दुनिया के इस अजीम तरीन बादशाह के सर से बादशाहत का ताज उतर गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फौरन जमीन पर सजदे में गिर पड़े, ज़ारो कतार रोने लगे और अल्लाह से माफी मांगकर बोले, या रब, तू पाक है। बेशक सारी मखलूक का पेट पालना और रिस्क देना सिर्फ और सिर्फ तेरी जात का काम है। मुझ जैसे इंसान की क्या औकात कि तेरी मखलूक का बोझ उठा सके। दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की यह दास्तान हमें बताती है कि इंसान चाहे हवाओं का मालिक बन जाए, जिन्नात उसके गुलाम हो जाएं और परिंदे उस पर साय करने लगें, वो रहता फिर भी अल्लाह का मोहताज ही है। ताकत, बादशाहत, ओहदे और गाड़ियां, ये सब दुनिया का फरेब हैं। असल ताकत सिर्फ उस रब की है जो रोजाना समंदर की गहराइयों में पत्थरों के अंदर बैठे कीड़ों को भी रिस्क पहुंचा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।